Hello friends, welcome to Engineering Girls. This is the fourth unit of Information Theory for Cybersecurity. The subject of honors degree introduced by AKTU. So this subject is for the fourth semester. So the syllabus of unit 4 is secrecy metrics, strong, weak, semantic and partial secrecy. Secure source coding, rate distortion theory for secrecy system, side information at receiver, and differential privacy distributed channel attack. So the first topic of this unit is secrecy metrics. Secrecy metrics are critical components in cryptography used to evaluate and measure the security of encryption schemes. Key factors of secrecy metrics are: first, strong secrecy. It ensures that an adversary cannot gain any information about the plain text from the ciphertext regardless of how much computational power they have. स्ट्रॉन्ग सीक्रेसी मैट्रिक्स इस बात की इंश्योरिटी देता है कि अटैकर के पास कितनी भी कंप्यूटेशनल पावर क्यों ना हो, वो एक साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को रिवील नहीं कर सकता। इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे है कि म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन आपके सीक्रेट मैसेज और प्लेन टेक्स्ट में ज़ीरो हो। दिस मैट्रिक इज़ थ्योरेटिकल एंड आइडियल, often unattainable in practice because it assumes the adversary has unlimited resources. It is a gold standard for encryption scheme. Second point is weak secrecy. It ensures that an adversary cannot gain significant information about the plain text from the ciphertext within reasonable computational limits. ये इंश्योरिटी देता है कि अगर अटैकर के पास लिमिटेड कंप्यूटेशनल लिमिट्स है तो वो एक साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट जनरेट नहीं कर सकता। रियल लाइफ में वीक सीक्रेसी एक अच्छी सीक्रेसी इंश्योर नहीं करती है। इट इज़ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच दैन स्ट्रॉन्ग सीक्रेसी। प्रैक्टिकली वीक सीक्रेसी इस टाइम पे अचीव की जा सकती है, स्ट्रॉन्ग सीक्रेसी इस टाइम पे अचीव करना इतना आसान नहीं है, बट टुडेज वीक secrecy are being practically approached. Here the focus is on making decryption or information leakage infeasible within the limits of current computational power and time. यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि कुछ लिमिटेड पावर और टाइम के दौरान इंफॉर्मेशन लीकेज ना हो पाए या फिर इम्पॉसिबल हो इंफॉर्मेशन को लीक करना ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और पर्टिकुलर पावर कंजम्पशन. So next topic is semantic security. It is a formal definition of security for encryption schemes. It ensures that an adversary cannot distinguish between the encryption of two chosen plain text. ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन स्कीम्स की सिक्योरिटी का फॉर्मल डेफिनेशन है जो इंश्योर करता है कि कोई भी एडवर्सरी डिस्टिंग्विश ना कर पाए किसी दो प्लेन टेक्स्ट के बीच के इंक्रिप्शन को. If an encryption scheme is semantically secure, अगर कोई encryption scheme semantically secure होगा, it means that the ciphertext reveals no information about the plain text. Ciphertext plain text की कोई information reveal नहीं करेगा, making it indistinguishable from the encryption of any other plain text of the same length. Semantic security is a standard requirement for modern encryption schemes to ensure that encrypted data does not leak any usable information to an adversary. Semantic security आज की डेट में एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है जो इंश्योर करता है कि कोई भी इंक्रिप्टेड डेटा किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को लीक ना करे. नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्शियल सीक्रेसी. इट गारंटीज दैट सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आर केप्ट सीक्रेट while other parts might be exposed. पार्शियल सीक्रेसी में हम प्लेन टेक्स्ट को कुछ हद तक साइफर कर देते हैं, सीक्रेट कर देते हैं, लेकिन कुछ पार्ट प्लेन टेक्स्ट का रिवील हो जाता है. लेकिन इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि जो प्लेन टेक्स्ट रिवील हो रहा है उसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना हो. इट कैन बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल एंट्रोपी. इसको कंडीशनल एंट्रोपी में कंसिडर किया जाता है where some information about the secret S given the adversary's observation O has higher entropy
कुछ इन्फॉर्मेशन की एंट्रोपी हाई होगी, इसका मतलब वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी अटैकर को या किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस के पास वो इन्फॉर्मेशन जाए। लेकिन कुछ सीक्रेट मैसेज की एंट्रोपी लो होगी और वो इन्फॉर्मेशन अटैकर या अनऑथराइज्ड एक्सेस के पास अगर चला गया तो उससे मैसेज रिवील हो सकता है, लेकिन मैसेज रिवील होने के बाद भी जो सेंसिटिव डेटा है वो हिडन रहेगा। दिस इज़ यूजफुल इन सिनेरियोज वेयर सम इंफॉर्मेशन कैन बी रिवील्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ओवरऑल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील कर भी दें फिर भी आपकी सिक्योरिटी पे कोई असर ना पड़े, ऐसे सिनेरियोज में इस सीक्रेसी को यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑफन अप्लाइड इन स्कीम्स वेयर ओनली स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा नीड टू बी प्रोटेक्टेड। जहाँ पर्टिकुलर डेटा को ही हाइड करना हो, पूरे मैसेज को हाइड करने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिक्योर सोर्स कोडिंग रेट। सिक्योर सोर्स कोडिंग रेट refers to the amount of information that can be securely transmitted per unit of time or per transmission using a secure source coding scheme. सिक्योर सोर्स कोडिंग की डेफिनेशन आपको ये बताती है कि इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली हम इंटरनेट पे पर यूनिट टाइम पे ट्रांसमिट कर सकें। इट इज़ अ क्रिटिकल मेट्रिक इन क्रिप्टोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी डिटरमाइनिंग हाउ एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन कैन बी इनकोडेड एंड ट्रांसमिटेड while maintaining security against eavesdroppers और unauthorized access। ये डिटरमाइन करता है कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को किस हद तक इनकोड करें और ट्रांसमिट करें जिससे हमारे डेटा की सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रेट। द इंफॉर्मेशन रेट मेजर्स हाउ मच इंफॉर्मेशन इन बाइट्स पर सेकेंड कैन बी रिलायबली ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। इंफॉर्मेशन रेट मेजर करता है कि कितने इन्फॉर्मेशन को पर सेकेंड में इन जनरल बिट्स पर सेकेंड को ट्रांसमिट किया जा रहा है थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योर सोर्स कोडिंग, दिस रेट कंसिडर्स not only the raw data transmission but also the security mechanism in place to protect the confidentiality of transmitted information. सिक्योर सोर्स कोडिंग में अगर बात की जाए तो इस रेट को कंसिडर करना पड़ता है ताकि मैसेज को सिक्योरली ट्रांसमिट कर सके और डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। और नेक्स्ट है सिक्योर सोर्स कोडिंग। Secure source coding refers to the process of encoding information in such a way that even if intercepted by an adversary, the encoded data reveals minimum or no information about the original content. Techniques like encryption, error detection coding, or cryptographic protocols are used to achieve secure source coding. सिक्योर सोर्स कोडिंग रेफ़र करता है उस प्रोसेस को जहां इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है इस तरीके से कि कोई भी एडवर्सरी साइफर टेक्स्ट से कोई भी डेटा रिवील ना कर सके ओरिजिनल कंटेंट का। इसको अचीव करने के लिए कुछ टेक्निक यूज़ किए जाते हैं जैसे कि इंक्रिप्शन मेथड, एरर करेक्शन कोडिंग एंड क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट सब टॉपिक इन द टॉपिक ऑफ सिक्योर सोर्स कोडिंग रेट इज़ rate in secure source coding. The rate in which secure source coding is influenced by several factors. हमारे सिक्योर सोर्स कोडिंग के कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसके रेट डिफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट है इंक्रिप्शन ओवरहेड, द एडिशनल बिट रिक्वायर्ड टू इनकोड इनक्रिप्टेड डेटा कंपेयर टू प्लेन टेक्स्ट। हमें डेटा साइफर टेक्स्ट को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ एडिशनल बिट्स को डालना पड़ता है ताकि डेटा को इनक्रिप्ट किया जा सके, उसको इंक्रिप्शन ओवरहेड कहते हैं। एरर करेक्शन कोडिंग, रिडंडेंट बिट्स एडेड टू द डेटा टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स विच अफेक्ट्स द इफेक्टिव ट्रांसमिशन रेट। एरर करेक्शन कोडिंग तभी अचीव हो पाती है जब आपके डेटा में एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड किया जाए जो आपके ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स, overhead introduced by cryptographic protocols such as key exchange mechanism and authentication. So the next topic is rate distortion theory for secrecy system. Let's start with the definition of rate distortion theory. Rate distortion theory deals with the trade-off between the compression data
how much the data can be compressed and the distortion, loss of quality in the reconstructed data. रेट डिस्टॉर्शन थ्योरी एक ट्रेड ऑफ डिफाइन करता है जो आपके कंप्रेस डेटा और रिकन्स्ट्रक्ट डेटा के बीच में होता है. In the context of secrecy system, it extends to how much information can be securely transmitted with a given level of distortion. क्योंकि जब हमें सिक्योर सोर्स कोडिंग करनी होती है तो हम अपने डेटा को कंप्रेस करते हैं और उसके रिकन्स्ट्रक्शन को समझने के लिए रेट डिस्टॉर्शन थ्योरी को समझना ज़रूरी है. क्योंकि रेट डिस्टॉर्शन थ्योरी ये बताता है कि अगर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो हो सकता है आपके रिकन्स्ट्रक्टेड डेटा में डिस्टॉर्शन हो, मतलब डेटा लॉस हो सकता है. एप्लीकेशन इन सिक्योर सोर्स कोडिंग, rate distortion theory helps in understanding the limitation of compressing data while ensuring that any intercepted information by an adversary is still unusable or indistinguishable from noise. It balances between minimizing data size and maintaining security. इसकी एप्लीकेशन में आता है कि आपके जो डेटा है उसको हम कंप्रेस करें इस तरीके से कि अगर एडवर्सरी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन जाती भी है तो वो अनयूजेबल हो या फिर उससे ओरिजिनल डेटा जो है वो रिवील ना हो सके. ये आपकी सिक्योरिटी को बैलेंस करता है और डेटा मिनिमाइजेशन को भी बैलेंस करता है. अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द ऑप्टिमल रेट अमाउंट ऑफ डेटा एट विच इंफॉर्मेशन कैन बी इनकोडेड एंड ट्रांसमिटेड such that the distortion for the legitimate receiver is minimized. इससे हम एक ऑप्टिमल रेट फाइंड करते हैं जिससे हम अपने इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर सकें और ट्रांसमिट कर सकें इस तरीके से कि डेटा डिस्टॉर्शन फॉर द रिसीवर एंड, यानी रिसीवर के एंड पे डेटा का डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा कम हो, और साथ ही साथ इस बात की इंश्योरिटी दे सकें कि कोई भी एडवर्सरी इनकोडेड डेटा को अगर एक्सेस कर भी लेता है तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल एक्यूरेसी के साथ रिकन्स्ट्रक्ट ना कर पाए. अब इसके की पॉइंट्स है आपके रेट, डिस्टॉर्शन और सिक्योरिटी. रेट, द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू इनकोड द सोर्स डेटा. रेट डिफाइन करता है कि कितने बिट चाहिए सोर्स कोड को, सोर्स डेटा को इनकोड करने के लिए. Distortion, the permissible deviation between the original source data and the reconstructed data after decoding. डिस्टोर्शन डिफाइन करता है कि आपके ओरिजिनल डेटा और रिकन्स्ट्रक्टेड डेटा के बीच में कितना डेविएशन हो. अगर ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि वो डिस्टॉर्टेड डेटा मीनिंगलेस हो क्योंकि रिसीवर के पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं पाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी. इंश्योरिंग दैट द इनकोडेड डेटा डज नॉट रिवील सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन टू एन अनऑथोराइज्ड पार्टी. ये इंश्योर करता है कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो अनऑथोराइज्ड पार्टी तक ना पहुंच पाए. इनकोडेड डेटा कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिवील ना करे. द नेक्स्ट टॉपिक इज साइड इन्फॉर्मेशन एट रिसीवर. साइड इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट अ रिसीवर पोसेसेस which can help in decoding the compressed data more efficiently or accurately. In the context of secure source coding, side information at the receiver plays a significant role in achieving better performance in terms of rate, distortion and security. साइड इन्फॉर्मेशन रेफ़र करता है उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो रिसीवर के पास होना चाहिए, जो डेटा को एक्यूरेटली और एफिशिएंटली डीकोड करने के हेल्प करता है. अगर क्रिप्टोग्राफिक टर्म्स में कहा जाए तो साइड इन्फॉर्मेशन आपके कुछ फिज़िकल इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं या फिर आपकी की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और साथ ही साथ इनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो यूज़ किया जाता है वो होता है. अब साइड इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, इसके दो पॉइंट है. एक वेनर विज जिव कोडिंग एंड दूसरा है स्लीपियन वॉल्फ कोडिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट द वाइनर जिव कोडिंग. इसका कॉन्सेप्ट, वाइनर जिव कोडिंग is a form of distributed source coding where the encoder does not have the access to the side information available at the decoder. इस कॉन्सेप्ट में जो इन्फॉर्मेशन डिकोडर के पास होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन एनकोडर की एंड पे नहीं होता. अब एप्लीकेशन, इन सिक्योर सोर्स कोडिंग दिस प्रिंसिपल can be used to design systems where the decoder leverages side information
to reconstruct the source data with minimal distortion while the encoded data remains secure. इसकी मदद से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि डीकोडर और रिसीवर साइड पे जो इन्फॉर्मेशन रिकन्स्ट्रक्ट होता है वो मिनिमम डिस्टॉर्शन के साथ हो, और ऑन द अदर हैंड नेटवर्क चैनल पे हमारा डेटा जो इनक्रिप्टेड है वो सिक्योर रहे. सिक्योरिटी एस्पेक्ट. द साइड इन्फॉर्मेशन helps to reduce the rate needed for encoding because the decoder can use this additional information to fill in gaps, thereby ensuring that the encoded data remains secure against eavesdroppers who lack the side information. साइड इन्फॉर्मेशन ये इंश्योर करता है कि सिर्फ डिकोडर के पास ही साइड इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो अगर हमारा इनक्रिप्टेड डेटा ईवड्रॉपर्स के पास चले भी जाए तो उससे कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील ना हो पाए जो कि आपका सेंसिटिव डेटा है. नेक्स्ट है स्लीपियन वॉल्व कोडिंग. इसको लॉसलेस कोडिंग ऑफ को रिलेटेड सोर्सेज भी कहा जाता है. कॉन्सेप्ट. Slepian valve coding is used for lossless compression of two correlated sources without the need for encoder to share side information with the decoder. इसमें side information share करने की ज़रूरत नहीं होती और lossless compression को ensure किया जाता है. Application. This technique can be employed where the correlation between the source and the side information can be exploited to achieve efficient and secure compression. यहाँ पे साइड इन्फॉर्मेशन और सोर्स के बीच के कोरिलेशन को एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि सिक्योर कंप्रेशन हो पाए और डेटा ट्रांसमिट हो पाए. सिक्योरिटी एस्पेक्ट. दिस अप्रोच ensures that the joint entropy of the source and side information is minimized, maintaining security by not leaking information about the original source through encoded data. Differential privacy. Differential privacy is a framework designed to provide strong privacy guarantees when performing computations or releasing information derived from a dataset. डिफरेंशियल प्राइवेसी एक फ्रेमवर्क है जो डिज़ाइन किया गया है स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी को गारंटी करने के लिए. जब परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन और रिलीजिंग इन्फॉर्मेशन, जब इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ किया जाता है किसी एक डेटा सेट से, it ensures that the removal or addition of a single data does not significantly affect the output of the analysis, thereby protecting individual data entries from being inferred. ये इंश्योर करता है कि अगर डेटा सेट में कोई भी सिंगल डेटा ऐड किया जाए तो आउटपुट में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, जिसकी वजह से इंडिविजुअल प्राइवेसी मेंटेन रहेगी. फॉर्मल डेफिनेशन. एन एल्गोरिथम इज सेड टू बी एप्सिलॉन differentially privated if for all data set D and D dash differing by at most one element and for all possible output S. ये एक फार्मूला है डिफरेंशियल प्राइवेसी का जो आप देख सकते हैं. अब इसमें एक पॉइंट है प्राइवेसी पैरामीटर का. अ स्मॉलर एप्सिलॉन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर प्राइवेसी गारंटीज मीनिंग द प्रेजेंस और absence of a single record has less impact on the output distribution. ये इंश्योर करता है कि आपके आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इम्पैक्ट, बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट पड़ा है किसी एक डेटा के प्रेजेंस या एब्सेंस में. अब इसमें दो टाइप के मैकेनिज़्म हैं, लाप्लास मैकेनिज़्म और एक्सपोनेंशियल मैकेनिज़्म. लाप्लास मैकेनिज़्म ऐड नॉइज़ drawn from a Laplace distribution to the output of a function. The amount of noise is calibrated to the sensitivity of the function and the desired level of privacy epsilon. Exponential mechanism used for selecting an output from a set of discrete options based on a utility function, ensuring differential privacy by adding noise proportional to the utility. Differential privacy techniques can be applied to add controlled noise, ensuring that the encoded data remains private. The next topic is distributed channel synthesis. It is a concept in information theory and network communications where multiple transmitters or nodes cooperate to synthesize a channel. ये इंफॉर्मेशन थ्योरी और नेटवर्क कम्युनिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर और नोड्स को एक साथ ऐड करके एक चैनल क्रिएट किया जाता है. This synthesized channel aims to achieve specific communication goals such as reliable data transmission, enhanced security, or efficient resource utilization.
ये अचीव करता है कुछ कम्युनिकेशन गोल्स को, जैसे कि डेटा रिलायबली ट्रांसमिट हो पाए, सिक्योरिटी मेंटेन हो और रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाए. द आइडिया इज़ टू लेवरेज द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द नोड्स to create a virtual communication channel that meets desired performance criteria. इस आइडिया के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स के नेचर को के एडवांटेजेस के थ्रू वर्चुअल कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मीट कर सकते. लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट. फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स कोडिंग. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल सोर्सेज कंप्रेसिंग देयर डेटा इंडिपेंडेंटली. यहाँ पे मल्टीपल सोर्स का डेटा जो है वो इंडिपेंडेंटली कंप्रेस होता है एंड डी कोड के टाइम पे जॉइन होता है. टेक्निक्स लाइक स्लीपियन वॉल्फ कोडिंग इन वाइनर जिप कोडिंग आर फंडामेंटल टू दिस कॉन्सेप्ट एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू दिस चैनल. ये दोनों कोडिंग मेथड जो है वो इसके फंडामेंटल पे बना हुआ है. अब नेक्स्ट है चैनल सिंथेसिस. इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ वर्चुअल चैनल विद डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज सच एज अ स्पेसिफिक नॉइज लेवल और कैपेसिटी यूजिंग मल्टीपल फिजिकल चैनल्स. दिस इज अचीव्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग द एक्शंस ऑफ मल्टीपल ट्रांसमीटर्स और नोड्स. चैनल सिंथेसाइज में हम एक वर्चुअल चैनल क्रिएट करते हैं जो हमारे डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी के बेसिस पे हो, जैसे कि नॉइज़ लेवल कितना होना चाहिए, चैनल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए एंड अदर फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक फाउंडेशन. इट लाइज इन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एंट्रोपी रेट डिस्टॉर्शन थ्योरी. These principles help in understanding how information can be efficiently and securely transmitted across distributed nodes. Next है distributed channel synthesis के application. First, cooperative communication. Nodes in a network can cooperate to improve the reliability and efficiency of communication by sharing information and jointly processing the transmitted data. The nodes can create a robust communication channel. नेटवर्क में जो नोड्स हैं वो कोऑपरेट करता है रिलायबिलिटी एंड कम्युनिकेशन एफिशिएंसी के लिए. by sharing information and jointly processing the transmitted data, नोड्स एक रोबस्ट और फास्ट कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर सकता है. सेकेंड है सिक्योर कम्युनिकेशन. Distributed nodes can work together to ensure that the synthesized channel is secure against eavesdroppers. Techniques such as cooperative jamming or using side information can enhance the security of the communication. Distributed networks जब साथ में काम करते हैं तो सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर की जाती है एंड कुछ कोऑपरेटिव टेक्निक्स जैसे कोऑपरेटिव जैमिंग और साइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को और इन्हेंस करता है. नेक्स्ट पॉइंट है सेंसर नेटवर्क. इन सेंसर नेटवर्क्स मल्टीपल सेंसर collects and transmit data to a central processor. Distributed channel synthesis allows these sensors to efficiently encode and transmit data, reducing redundancy and improving the overall network performance. सेंसर नेटवर्क में मल्टीपल सेंसर जो है वो डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं एक सेंट्रल प्रोसेसर की तरफ. डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल सिंथेसिस के यूज़ से हम इन सेंसर्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं डेटा को इनकोड एंड ट्रांसमिट करने के लिए, जिससे डेटा रिडंडेंसी कम हो सकती है एंड ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया जा सकता है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल सिंथेसिस के क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या सोल्यूशन है. चैलेंज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मल्टीपल नोड. सिंक्रोनाइजेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज फेस किया जा सकता है जहाँ पे नोड्स के टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अब इसको मेंटेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती है जैसे टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्रेंस मैनेजमेंट. इन्फ्रेंस बिटवीन नोड कैन डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ सिंथेसिस चैनल. अगर आपके चैनल में या मैनेजमेंट में इन्फ्रेंस होगा तो आपका नोड जो है वो परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है. इसका सॉल्यूशन है इन्फ्रेंस कैन बी मैनेज्ड यूजिंग एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स एंड बाय डिज़ाइनिंग द सिस्टम टू एक्सप्लॉइट द स्पेशियल डाइवर्सिटी ऑफ द नोड. कुछ एडवांस
सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स के थ्रू इन्फेरेंस को मैनेज किया जा सकता है. कोऑर्डिनेटिंग बीम फॉर्मिंग एंड इन्फेरेंस अलाइनमेंट आर पोटेंशियल टेक्निक्स टू मिटिगेट इन्फेरेंस. नेक्स्ट पॉइंट, resource allocation. Efficiently allocating resources such as power and bandwidth among the node is critical for performance of the synthesized data. Resource allocation बहुत ही ज़्यादा important factor है efficient data transmission के लिए through the nodes. इसका solution है optimized algorithm can be used to dynamically allocate resources based on the current network condition and the desired performance metrics. अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एक ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम यूज़ करें जिससे रिसोर्सेज डायनामिकली एलोकेट किया जाए, जिसकी हेल्प से हम एक अच्छा इन्हेंस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को इंश्योर कर पाए. सो वी हैव कंप्लीटेड द 4th यूनिट. थैंक यू.